students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our second chapter of class 5th, which is about lifestyle of animals. So आज हम क्या animals की lifestyle के बारे में discuss करने वाले हैं, उनके habitat, उनके adaptations, okay? चल, so let's start it. See, animals live in every possible corner of the earth. The earth is their home. Animals differ from each other in many ways. They have special features to cope with the environment. And in this chapter, we will learn about various features of animals that help them to adapt to their environment. So students, animals हमारे अर्थ के हर एक पॉसिबल कॉर्नर पे होते हैं. अर्थ उनका होम है. एनिमल्स एक दूसरे से डिफरेंट वेज में डिफर करते हैं. इनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो इनको इनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं. सो इस चैप्टर में हम वेरियस फीचर्स ऑफ एनिमल्स को डिस्कस करेंगे जो उन एनिमल्स को उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने में हेल्पफुल है. सो नंबर 1 टॉपिक इज हैबिटेट. Different animals are found in different habitats. They generally live in places that provide them with food, water, shelter, and an appropriate environment. And the natural living place of an animal is called its habitat. A habitat is essentially the place where an animal can give birth to its young ones and to bring them up safely. So different animals, different habitats में होते हैं. ये generally ऐसे places पे रहते हैं जो इनको food, water, shelter and एक appropriate environment provide कर सके. एंड एक ऐसा नेचुरल लिविंग प्लेस जहाँ पे एनिमल सर्वाइव करता है, ग्रो करता है, वो प्लेस उसका हैबिटेट कहलाता है. हैबिटेट एसेंशियली एक ऐसा प्लेस होगा जहाँ पे एनिमल अपने यंग वंस को भी क्या कर सकता है, बर्थ दे सकता है एंड उनको सेफली ब्रिंग अप कर सकता है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट. सबसे पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड उनके हैबिटेट्स को डिस्कस करेंगे. See, what are terrestrial animals? Students, the animals which live on land. ऐसे एनिमल्स जो लैंड सरफेस पे रहते हैं, ग्रो करते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है. ठीक है. सो कुछ एनिमल्स हैं लाइक अ लायन, इट नीड अ लार्ज एरिया, व्हाइल अदर्स लाइक अ रैबिट नीड अ स्मॉल एरिया. Different animals live in different habitats such as forest, desert, mountain, polar region, ocean and fresh water. And the animals that live on land are called terrestrial animals. ओके. सो कुछ ऐसे एनिमल्स लाइक लायन. लायन को एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए सर्वाइव करने के लिए. एंड रैबिट को स्मॉल एरिया चाहिए. सो इसी बेसिस पर डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं, जैसे कि कुछ फॉरेस्ट में, डेजर्ट, माउंटेन, पोलर रीजन, ओशन एंड फ्रेश वाटर. एंड वो एनिमल्स जो किसी भी लैंड सरफेस पर रहे उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स हैं जो हाँ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जनरली फाउंड होते हैं एंड उनको डिस्क्राइब किया गया है अंडर द फॉलोइंग हेड. नंबर 1, फॉरेस्ट. फॉरेस्ट इज द वुडेड area. See, a forest is characterized by trees and other plants in a large densely wooded area. Forest को कैसे characterize किया जाता है? Forest एक ऐसा area होगा जहाँ पे बहुत सारे number of trees होंगे and other plants होंगे जो कि एक large densely wooded area होगा. Forest है about 80% of terrestrial animals का home. ठीक है. बहुत सारे ऐसे animals like lion, tiger, bear, deer, etc. They all live in forest. And some terrestrial animals like monkey, squirrel, they live on trees, while others like rabbit and mouse make underground burrows in the forest floor. ठीक है. So monkey, squirrel ये कहाँ रहते हैं? Trees पे रहते हैं. And कुछ और है like rabbit and mouse, ये forest floor पे ही क्या underground burrows बना लेते हैं. Birds कहाँ रहते हैं? Birds nest में रहती हैं जो कि ground पे होता है या bushes और trees पे होता है. Right? Now, the next is desert. Desert is the arid land. See, the sandy land areas which do not have sufficient water sources or green vegetation are called desert. एक ऐसा sandy land area जिसमें ज़्यादा sufficient water sources नहीं होते या green vegetation नहीं होती है, उसको हम desert कहते हैं. Desert usually एक hot and dry place है and during the day time deserts काफ़ी hot होते हैं and night time पे weather जो है desert का cool होता है. Desert animals पे कुछ special body features हैं जो उनको survive करने में helpful होते हैं and some of them like badger bury underground during the day to keep cool, while others like Gila monster have a thick skin to avoid water loss through sweating. Camels भी वहीं रहते हैं. वो फैट को अपने हम्प वाले पार्ट में स्टोर करते हैं जो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है when they do not get food for the days together. उसके साथ साथ they also have thick fur. इनकी eyes and eyelashes में एक thick fur होता है. eyelashes काफी long होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है, इनके ईयर्स को एंड इनकी आईज को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द सैंड. देन माउंटेनियस रीजन्स. A mountain habitat varies hugely from the base to the peak. एक माउंटेन हैबिटेट जो है काफ़ी वेरी करता है, यानी कि फ्रॉम द बेस टू द पीक इसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं. टेम्परेचर जो माउंटेन टॉप पे है वो काफ़ी लो होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे कम होती है. एंड जो पीक वाला पार्ट है वहाँ पे ट्रीज भी नहीं होते. बहुत सारी एनिमल स्पीशीज है लाइक शीप, माउंटेन गोट, फॉक्सेस, बियर, याक, दे लिव ऑन दी माउंटेन्स.
माउंटेन गोट्स, जो माउंटेन गोट्स होती हैं, ये इनके काफी टफ एंड फ्लेक्सिबल हूव्स होते हैं जो इनको वहां पे स्टेडी रखते हैं। याक के पास एक थिक फ्लीस होता है जो इनको हीट कंजर्व करने में हेल्पफुल होता है, एंड एक काफी लार्ज चेस्ट एंड लंप होता है जो इनको लो ऑक्सीजन लेवल से डील करने में हेल्पफुल होता है। Now next is polar region. Polar habitats are located at the very top and very bottom of the world. Polar regions हमारे वर्ल्ड के या तो बहुत ज्यादा टॉप या बहुत बॉटम पार्ट पे लोकेटेड हैं। ये काफी कोल्ड विंडी होते हैं एंड दे हैव अ लॉट ऑफ स्नो एंड आइस। ठीक है, ट्रीज जो यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते एंड एनिमल्स जो यहाँ पे सर्वाइव करते हैं उनके पास काफी थिक फर और फेदर्स होते हैं एंड ये फिशेस या अदर एनिमल्स को हंट करके खाते हैं। एग्जाम्पल पोलर बियर, सील, आर्कटिक फॉक्सेस, पेंगुइन, दे ऑल आर फाउंड हियर। एंड इसके अलावा सम एनिमल्स आर देयर लाइक सील, इनके पास एक थिक लेयर ऑफ फैट होती है जो इनको वार्म रखती है, एंड पोलर बियर्स हैव अ थिक फर एज वेल एज अ थिक लेयर ऑफ फैट टू सर्वाइव विद द कोट। नाउ next we come to marine water and fresh water. See, marine water includes all the 5 ocean and seas that cover 2/3 of the earth's surface. Marine water के अंदर स्टूडेंट वो 5 जितने हमारे 5 ओशियंस हैं वो सारे एंड वो सीज जिन्होंने हमारे अर्थ सरफेस का 2/3 पार्ट कवर किया है, दे ऑल आर इंक्लूडेड अंडर मेरीन वाटर। इट प्रोवाइड्स द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑन द अर्थ एंड सबसे बड़ा हैबिटेट जो हमारे अर्थ पे दैट इज मेरीन वाटर ओनली। एक लार्ज वैरायटी ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं लाइक व्हेल, ऑक्टोपस एंड टर्टल विच आर फाउंड इन मेरीन वाटर। एंड ऑन द अदर हैंड कुछ फ्रेश वाटर बॉडीज भी हैं विच इंक्लूड रिवर, लेक, पॉन्ड एक्सेट्रा जहाँ पे फिशेज एंड बाकी सारे एक्वेटिक एनिमल्स फाउंड किए जाते हैं। Aquatic animals like frogs and salamander can live both on land and in water and thus they are called amphibians. And कुछ ऐसे aquatic animals हैं जैसे कि frog and salamander, crocodile, okay, tortoise, ये क्या है, ये land and water दोनों पे survive कर सकते हैं and therefore they are known as amphibians. Okay? चलो. Now, next is adaptation in animals. अब हम animals के अंदर क्या क्या adaptations हैं उनको discuss करेंगे। Number 1, first of all, adaptation is the process by which animals make themselves fit for the environment in which they are living. अडेप्टेशन क्या, अडेप्टेशन है कि ये सब प्रोसेस है जिसकी वजह से एनिमल्स खुद को फिट बनाते हैं उस एनवायरनमेंट के लिए जहां वो रह रहे हैं। डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट अडेप्टेशंस शो करते हैं एक पर्टिकुलर हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए एंड इट इंक्लूड्स चेंजेस इन द बॉडी ऑर्गन, फंक्शन, फीचर्स और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अडेप्टेशन एक एनिमल को हेल्प करता है टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट एंड मोस्ट कॉमन अडेप्टेशंस जो देखे जाते हैं एनिमल की बॉडी में दैट इज एनिमल बॉडी कवरिंग, feeding habits, breathing organs and movement. And first of all, we are going to discuss about body covering. So animals need to protect themselves from different weather conditions. Animals को अपनी body को different weather conditions के according protect करना जरूरी होता है, cover करना जरूरी होता है। And इस purpose के लिए nature ने उन्हें क्या एक body covering provide करी होती है जो उन्हें particular habitat में survive करने के लिए and उनको extremely cold और hot weather conditions से protect करने के लिए दी गई है by the nature. They also use their body covering to keep themselves safe from being hunted by other animals. And इसके साथ साथ ये एनिमल्स अपनी बॉडी कवरिंग का यूज करते हैं खुद को सेफ रखने के लिए, किससे कि वो दूसरे एनिमल से हंट ना हो, खुद को अपने प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करने के लिए भी अपनी बॉडी कवरिंग का यूज ये एनिमल्स करते हैं। See, some animals show their distinctive body coverings are as discussed under the following heading. अब कुछ एनिमल बॉडी कवरिंग्स हमें यहाँ पे गिवन है लाइक नंबर 1 स्केल। ठीक है, सो कुछ एनिमल्स की बॉडीज है लाइक रेप्टाइल, फिशेस, ये स्केल से कवर्ड रहती हैं। दीज स्केल्स वेरी अकॉर्डिंग टू द साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल एंड एक एनिमल का साइज, शेप या स्ट्रक्चर कैसा है उस अकॉर्डिंग उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं। द स्केल्स ऑफ श्रिम्प फॉर एग्जाम्पल आर रिजिड। एग्जाम्पल गिवन है स्केल ऑफ श्रिम्प। श्रिम्प एनिमल के जो स्केल्स होते हैं वो काफी रिजिड होते हैं, वहीं जो ईल्स है उन ईल्स के ऊपर कोई भी स्केल्स नहीं होते हैं। मोस्टली जो रेप्टाइल्स है उनके हॉर्नी स्केल्स होते हैं जो उनको वाटर लॉस से प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द बॉडी सरफेस एंड एक स्नेक अपने स्केल, बॉडी स्केल का यूज करता है टू मूव ऑन लैंड। द नेक्स्ट वी हैव शेल। शेल क्या है? शेल इज अ हार्ड आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स एन एनिमल व्हेन इट इज इन डेंजर। शेल एक हार्ड आउटर कवरिंग है जो एक एनिमल को प्रोटेक्ट करती है जब वो डेंजर में यानी कि खतरे में होता है, जैसे कि स्नेल, टॉर्टोइस, टर्टल्स, ये एनिमल्स ऐसे जिनके पास काफी हार्ड शेल होता है। यू कैन सी दिस इज अ टॉर्टोइस एंड ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज द शेल पार्ट। ठीक है, एंड जैसे इन एनिमल्स को ऐसा लगता है कि इनके आसपास खतरा है, ये अपने हेड एंड लिम्स को शेल के अंदर बंद कर लेते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट? फेदर्स। सी, फेदर्स कवर द बॉडी ऑफ बर्ड्स। फेदर क्या कहता है? फेदर जो बर्ड्स है उनकी बॉडी को कवर करते हैं एंड इन्हें हेल्प करते हैं ड्यूरिंग देयर फ्लाइट एंड ऑल्सो गिव देम शेड। बर्ड्स अपने फेदर्स का यूज करती हैं खुद को क्या वार्म रखने के लिए इन कोल्ड एरिया एंड खुद को रेन से
प्रोटेक्ट करने के लिए भी. ओके, देन नेक्स्ट वी कम टू फर. कुछ एनिमल्स लाइक शीप, गोट, बियर, इनके पास फर होता है जो इनकी बॉडी को कवर करता है एंड ये फर इनको लो टेम्परेचर में वार्म रखने में भी हेल्पफुल होता है. देन next we come to the topic that is hibernation. Some animals go into a deep sleep to save themselves from severe winters and survive without eating much, and the state of resting in unfavorable weather condition is called hibernation. See students, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एक बहुत गहरी नींद यानी कि डीप स्लीप के लिए चले जाते हैं खुद को सीवियर विंटर कंडीशन से सेव करने के लिए एंड सर्वाइव करने के लिए विदाउट ईटिंग मच. एंड ये जो स्टेट है जहाँ पे ये अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस में रेस्ट करते हैं, लॉन्ग रेस्ट पीरियड पे जाते हैं, उसको हम हाइबरनेशन कहते हैं. एनिमल्स लाइक बियर एंड लिजर्ड ये क्या कहते हैं, ऑटम सीजन में बहुत सारा खाना खा लेते हैं एंड उसको एज अ फैट अपनी बॉडी में यूज स्टोर करते हैं सो दैट इसको वो विंटर सीजन में यूज कर सके व्हेन दे गो इनटू हाइबरनेशन. एंड हाइबरनेशन पीरियड में इनके बॉडी टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है एंड ब्रीदिंग रेट भी स्लो डाउन हो जाता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज फीडिंग हैबिट्स. सी, animals need food to live and to stay healthy. Food gives energy for day-to-day activities. They depend on plants and other animals for their food. And different animals have different feeding habits. So animals को क्यों क्या चाहिए, फूड की रिक्वायरमेंट है हेल्दी रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, बिकॉज फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है डे टू डे एक्टिविटीज के लिए. एंड सभी एनिमल्स प्लांट से दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. अब डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स है एंड इनकी फीडिंग हैबिट्स के बेसिस पे हम एनिमल्स को हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर जैसी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 हर्बीवोर्स. सो वो एनिमल्स जो सिर्फ ग्रास या दूसरे प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है, दे आर नोन एज हर्बीवोर्स. एग्जाम्पल काओ, हॉर्स, डियर, दीज आर हर्बीवोरस एनिमल्स. हर्बीवोर्स के पास जो फ्रंट टीथ हैं वो काफी शार्प होते हैं यानी कि इंसीजर्स काफी शार्प होते हैं जिसके थ्रू ये प्लांट पार्ट्स को इजिली कट कर सकते हैं. एंड जो इनके बैक टीथ होते हैं वो काफी लार्ज फ्लैट हैं जो इनके जॉ के बिल्कुल बैक पे होते हैं जिनको मोलर्स एंड प्रीमोलर्स कहा जाता है सो दैट इस फूड को इजिली ये ग्राइंड कर सके. नेक्स्ट वी हैव कार्निवोर्स. द एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश यानी कि मीट खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहा जाता है. एग्जाम्पल लायन, वूफ एंड टाइगर, दीज आर द कार्निवोरस एनिमल्स. एंड अब कार्निवोरस एनिमल्स के जो कैनाइंस है वो काफी शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं सो दैट दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को टीयर कर सके. एंड इनके काफी स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं एट द बैक ऑफ द जॉ यानी कि मोलर्स एंड प्रीमोलर्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं सो दैट ये फ्लैश एंड बोन्स को इजिली च्यू कर सके. कुछ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स भी होती हैं लाइक ईगल, काइट एंड वर्चर. इनकी जो बीक वाला पार्ट है बिकॉज दे डू नॉट हैव टीथ तो इनकी बीक के थ्रू ये खाते हैं. तो ये जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स है इनकी काफी शार्प एंड बुक्ड बीक्स होती है फॉर टीयरिंग द फ्लैश एंड इनके पास स्ट्रॉन्ग क्लॉज भी होते हैं सो ताकि अपने प्रे को इजिली कैच करके होल्ड रख सके. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स कौन से एनिमल्स है विच ईट बोथ फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट. ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश या प्लांट प्रोडक्ट्स दोनों पे ही फीड कर सकते हैं उन्हें ओमनिवोर्स कहा जाता है. एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, बियर, क्रोज, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिवोरस एनिमल्स. As omnivores eat both plants and animals, they have a combination of a sharp front teeth and molars for grinded. And क्योंकि omnivores plants and animals दोनों को खा सकते हैं तो इनके पास combination होता है sharp front teeth का and molars का for grinding and chewing. Okay? चलो. Now next is breathing in animals. अब animals में breathing कैसे possible है? Let's discuss it. So all living things need to breathe. They take oxygen from their surrounding and release carbon dioxide. All terrestrial animals take oxygen from the atmosphere, while aquatic plants take oxygen dissolved in water. And let us discuss the breathing side of some animals. So students, सभी living animals या सभी living things क्या करती है? They need to breathe. And ये क्या करते हैं? अपने surrounding से oxygen को intake करते हैं and carbon dioxide को release करते हैं. जितने भी terrestrial animals हैं वो क्या oxygen को अपने atmosphere से लेते हैं. एंड एक्वेटिक एनिमल्स ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन लेते हैं जो वाटर डिसॉल्व होती हैं. सो अब हम कुछ ब्रीदिंग स्टाइल्स के डिस्कस करने वाले हैं इन सम एनिमल्स. नंबर 1 इज फिशेस. सो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स, ज़्यादातर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं लाइक फिश, क्रैब, ऑयस्टर एंड टेडपोल, ये किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. ये गिल्स किससे? ब्लड वेसल्स के साथ सप्लाइड होते हैं. जब वाटर इनके गिल्स के ओवरफ्लो करता है, इनके गिल्स के जो फ्लैप हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में ही रिलीज कर दिया जाता है. द नेक्स्ट इज इंसेक्ट. इंसेक्ट्स किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? दे ब्रीथ थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडी आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स. बेसिकली इंसेक्ट की बॉडी पर छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं जिनको स्पाइरेकल्स कहा जाता है एंड स्पाइरेकल्स के थ्रू ही इंसेक्ट्स ब्रीथ. इनके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए, रादर दे हैव अ फाइन नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब दैट रीच एवरी पार्ट ऑफ देयर बॉडी। उसकी जगह इनके पास एक फाइन नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का जो इनकी हर एक बॉडी पार्ट तक रीच करता है। ये ट्यूब्स क्या करती हैं, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन को डिलीवर करती हैं टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आती है टू बी रिलीज थ्रू दी स्पाइरेकल्स। Then next we have amphibians. As I told you, amphibians कौन से animals हैं which live on both that is land and in water. जैसे कि frog क्या है, एक amphibian है। tadpole क्या है, tadpole क्या करता है, tadpole अपने gills के थ्रू ब्रीथ करता है, जबकि एक adult frog क्या करता है, अपने lungs के थ्रू ब्रीथ करता है when it is on land and skin के थ्रू ब्रीथ करता है when it is in water. Okay? Then next is birds, reptiles and mammals. So students, all terrestrial animals, जितने भी terrestrial animals है like bird, reptiles and mammals, ये सभी किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, द लंग्स आर होलो कैविटीज विद लार्ज सरफेस एरिया। लंग्स जो है काफी रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड वेसल्स के साथ, एंड लंग्स एक होलो कैविटीज है जिसका सरफेस एरिया काफी बड़ा होता है। एंड गैसेस का एक्सचेंज होता है एम्फीबियंस के अंदर, इट टेक्स प्लेस इन द लंग्स ओनली। देन ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर, अब एयर जो आपने इनहेल करी है उसमें से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है एंड उसको हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी तक सप्लाई किया जाता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में से है उसको लंग्स एब्जॉर्ब करते हैं ब्लड में से एंड उसको फिर एयर में पास कर दिया जाता है। ओके, सो दीज वर द डिफरेंट ब्रीदिंग स्टाइल्स। नाउ नेक्स्ट इज मूवमेंट इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। See, unlike plants, animals move from one place to another in search of food, shelter, breeding places, and protection. And different animals have different organs for movement. See, plants के साथ अगर comparison किया जाए तो animals अब एक place से दूसरे place पे move कर सकते हैं in search of food, shelter, breeding places, and protection. And different animals के पास different body organs हैं for the purpose of movement, right? So number one, we have land animals. So most land animals have 4 limbs. ज़्यादातर land animals के पास 4 limbs होते हैं। इनके 2 limbs front में होते हैं which are called forelimbs, and बचे हुए 2 limbs back होते हैं which are called hind limbs. Okay? कुछ ऐसे mammals हैं जो अपने all the 4 limbs का use करते हैं walk करने के लिए, and कुछ ऐसे हैं जो केवल अपने hind limbs के through move करते हैं। इनके जो 4 limbs हैं जिनको hands कहा जाता है, ये use किए जाते हैं several things को hold करने के लिए and help them to do वर्क ऑल्सो। ओके, रेप्टाइल्स जो होते हैं लाइक लिजर्ड, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज, ये लैंड पे क्रॉल करते हैं अपने शॉर्ट लेग्स के थ्रू। एक स्नेक भी क्या लैंड पे रहता है बट इट हैज नो लेग्स, एज मेंशन्ड अर्लियर ये अपने किसके थ्रू, अपने बॉडी स्केल के थ्रू लैंड पे मूव करता है। देन नेक्स्ट वी कम टू एक्वेटिक प्लांट्स। सो फिशेस के पास फिन्स होते हैं वाटर में स्विम करने के लिए। इनके पास 2 पेयर्स होते हैं ईच ऑफ पेयर्ड फिन एंड अनपेयर्ड फिन। सो जो 2 पेयर्ड फिन्स हैं वो इन्हें हेल्प करते हैं फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ मूव करने में, एंड जो अनपेयर्ड फिन्स है वो इन्हें हेल्प करता है इनके बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में एंड इनके मूवमेंट के दौरान इनके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। फिर इसके बाद टर्टल्स के पास पैडल लाइक 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स होते हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं वाटर को पुश करने में एट द बैक एंड मूव फॉरवर्ड। पेंगुइन्स के पास 4 लिम्स होते हैं जो कि फ्लिपर्स की फॉर्म में मॉडिफाइड होते हैं एंड उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। फ्रॉग, डक, स्वान इनके वेब्ड फीट होते हैं which help them to swim in water. Then next we come to insect. Insects have 6 legs for movement. Insects के पास 6 legs होते हैं for the movement. Ant and cockroach for example crawl with the help of their legs. Ant, cockroach ये क्या insects के example हैं जो अपने legs के through ही crawl करते हैं। Grasshopper and locust ये अपने strong and long hind limbs का use करते हैं for hopping. ठीक है। Water insects अपने legs का use करते हैं for swimming. कुछ फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं जिनके पास विंग्स होते हैं टू फ्लाई एंड उनके 4 लिम्स मॉडिफाइड होते हैं इनटू विंग्स। ओके, देन नेक्स्ट वी कम टू बर्ड्स। बर्ड्स के पास क्या है, बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई। बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं टू फ्लाई। विंग्स मॉडिफाइड 4 लिम्स होते हैं। इनके पास एक स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होती है हॉलो बोन्स के साथ, एंड फ्लाइंग के लिए ये अपने विंग्स का यूज करते हैं डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। इसके अलावा जो टेल फेदर्स होते हैं बर्ड्स के, इट हेल्प देम टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ देयर फ्लाइट। एंड ऑल बर्ड्स, सभी बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स हैं विच कैन नॉट फ्लाई एंड इन बर्ड्स को फ्लाइटलेस बर्ड्स कहा जाता है। वाई? बिकॉज इन बर्ड्स के जो विंग्स हैं काफी वीक होते हैं एंड एक बहुत लार्ज बॉडी होती है, हैवी बॉडी होती है, देयरफॉर दे कैन नॉट फ्लाई। एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, कीवी, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स। ओके, देन नेक्स्ट वी कम टू माइग्रेशन।
Every year, some animals travel to other places to escape unfavorable weather to search for food and to reach their favorable breeding places. This mass movement of animal is called migration. So, student, हर साल कुछ animals हैं जो एक जगह से दूसरी जगह travel करते हैं unfavorable weather conditions से बचने के लिए, फूड सर्च करने के लिए या कुछ फेवरेबल ब्रीडिंग प्लेसेस को फाइंड करने के लिए. एंड जो ये मास मूवमेंट होता है एनिमल्स का, है ना, इन सर्च ऑफ द फेवरेबल कंडीशंस, एंड दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन. सो कुछ एनिमल्स हैं जो कि शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए माइग्रेट करते हैं एंड मेनी अदर्स गो थाउजेंड ऑफ माइल्स सीजनली. एंड बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स को माइग्रेट करके जाते हैं सीजनली. एंड ये एनिमल्स कैसे माइग्रेट करते हैं? बाय वॉकिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, हॉपिंग और बाय अदर needs. So first of all, we have migratory birds. So Siberian crane and mallard duck come to India every winter to breed. ठीक है, Siberian crane and mallard ducks ये क्या हर विंटर सीजन में ब्रीड करने के लिए इंडिया आते हैं. आर्कटिक टर्न जो है अपना लॉन्गेस्ट माइग्रेशन करती है अबाउट 70,000 किलोमीटर का हर विंटर सीजन में फ्रॉम आर्कटिक सर्कल टू द एंटार्क्टिक सर्कल, एंड उसके बाद वापस चली जाती है. माइग्रेटरी बर्ड्स एक लार्ज फ्लॉक में फ्लाई करती हैं किसी भी डेंजर को अवॉइड करने के लिए ड्यूरिंग द जर्नी. लाइक दिस यू कैन सी दीज आर द माइग्रेशन इन बर्ड्स. ओके, देन नेक्स्ट इज माइग्रेटरी फिशेस. अब कुछ माइग्रेटरी फिशेस भी होती हैं जैसे कि सैल्मन. सैल्मन क्या है? नदर्न वाटर्स की फिश है जो कि सी वाटर में रहती है बट एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है फ्रेश वाटर रिवर पे जाने के लिए टू ले इट्स एग. ओके, एंड इसके यंग वंस जो है वो वापस ट्रेवल बैक करते हैं टू द सी. एंड जो ये मूवमेंट होता है फिशेस का फ्रेश वाटर में, इट ऑल्सो अकर्स ऑफन द फिश स्विम्स अप रिवर टू ले एग्स. द नेक्स्ट इज माइग्रेटरी इंसेक्ट्स. कुछ माइग्रेटरी इंसेक्ट्स भी होते हैं लाइक मोनार्च बटरफ्लाई. मोनार्च बटरफ्लाई कहाँ से? कनाडा टू मैक्सिको माइग्रेट करते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड दे कम बैक इन समर सीजन. ठीक है, उसके अलावा कुछ और भी माइग्रेटरी इंसेक्ट हैं लाइक लोकस्ट. ये क्या थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक मूव करते हैं. लोकस्ट काफ़ी हार्मफुल होते हैं बिकॉज ये स्टैंडिंग क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. You can see this is the migration in locust. Okay? Chalo. So that's all for the chapter. It's completed and I hope you all must have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.